Hi, we welcome you once again for chapter number 9, CBSE class 12, International Trade. So, we'll take on today a very important chapter, that is international trade. So, you're already familiar with two words. One is called trade. Trade comes under tertiary activity, which I told you last chapter, that all the activities which comes under service sector, that is a part of a tertiary sector. You must have studied this chapter very well, I hope so. What does trade means? Trade is a voluntary exchange of goods and services. आप अपनी इच्छा के साथ exchange करते हैं goods and services. Nobody is forcing you. Nobody is saying anything to you that don't trade for that. अगर आपकी इच्छा होती तब आप goods और services का trade करते हैं. किसी चीज़ का खरीदना बेचना जनरल लैंग्वेज में that's mainly called trade. So that we'll see in this. एंड मेनली टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड. आपको दो पार्टीज़ की ज़रूरत होती है ट्रेड में, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला. जब आपके दोनों पार्टीज होंगी देन ओनली ट्रेड इज़ पॉसिबल, राइट. सो टू पार्टी मीन्स वन पर्सन इज सेलिंग and one person is purchasing, right? If both the parties agree on this, then the trade can carried out. But in certain places still we have a primitive way of trade, that is barter system. मीन्स डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट रिक्वायर्ड फॉर बार्टर सिस्टम. पुराने टाइम में हम लोग सामान के बदले सामान का एक्सचेंज करते थे व्हेन वी हैव नॉट इन्वेंटेड करेंसी. लेटर ऑन टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल करेंसी हैज़ बीन स्टार्टेड, मनी came into circulation, so a lot of problems has been sorted out, right? So barter system was there earlier in some places, still it is existing. अभी भी की जगहों पर आपको barter system देखने को मिलता है, right? So both the parties, if are happy, mutually beneficial, then only they can trade. So it's very difficult procedure. आपको सारा घूमना पड़ता है, उसके बाद देखना पड़ता है किसको सूट करेगा किसको नहीं सूट करेगा. So that is the problem with barter system. Trade can be conducted at two levels. Trade can be considered at national level and it can be international level. So this chapter mainly deal with international trade, right? So both the levels we are doing trade. अगर इसको सब वे में भी डिवाइड करेंगे तो आगे भी स्टेट टू स्टेट भी होता है, राइट. रीजनल बेसिस पे भी होता है. सो इंटरनेशनल ट्रेड, व्हेनेवर आई एम यूजिंग वर्ड इंटरनेशनल ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज. ट्रेड में आ गया कि आपका गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, राइट. और आप नेशनल बाउंड्रीज़ के पार जाकर किसी चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. This is very important for every country because no country can be self-dependent. They have to depend on something from one another. So country needs to trade to get some commodity. Like example, if you take India is a deficient in petroleum, so we have to obtain the petroleum from other countries because we don't have so much oil in our country. That's the reason, because we cannot produce them. हमारे देश में है नहीं या हम उसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते. So they have to purchase from somewhere, right? But definitely, like individual person, when we purchase something, we will see which shop gives you a lower price. So कौन सी दुकान आपको सस्ता देती है. वर्ल्ड में भी जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से वो चीज़ सस्ती मिल रही है और अच्छी मिल रही है. That's the reason this trade can be carried. So the initial form of a trade in primitive society, अगर हम पुराने टाइम में देखें तो जो पुराने टाइम में primitive societies थी, so the barter system was there. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि what barter system means, when you are exchanging good with good, right? So direct exchange of goods take place. उसमें आपकी सीधी goods का ही trade होता था, right? लेकिन example, if they have given example, if you are a porter and you are need of a plumber, अगर आप porter का काम करते हैं लेकिन आपको plumber की ज़रूरत है, तो आपको प्लम्बर को देखना पड़ेगा पहले. जब तक प्लम्बर मिलेगा नहीं तब तक आपका ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट. और प्लम्बर को भी पॉट्स को लेना अगर होगा तब वो प्लम्बर पॉटर की हेल्प करेगा, अदरवाइज दिस एक्सचेंज इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो दिस इज़ द थिंग, प्रॉब्लम मेनली इन बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स वेयर वी हैव स्टार्टेड, राइट. सो एवरी जनवरी they have given the example in your book. The harvest season starts somewhere in Guwahati, right. आपका हर साल there was a harvest system
and there was a mela which used to take place in Guwahati. छोटा सा आज भी हम लोग छोटे छोटे मेले लगते हैं, right? That has been carried out. Mela has been carried out in this. There is a mainly a harvest season which is there, और that this place Jagrod का नाम दिया हुआ 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी, एंड दैट्स अ पॉसिबल फेयर इन इंडिया. ऐसे छोटे छोटे मेले हमारे देश में लगते रहते हैं जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट में मेनली द प्रैक्टिस विच दे यूज टू हैव, ट्राइबल्स हैं, दे यूज टू एक्सचेंज द थिंग्स इन बार्टर सिस्टम, राइट. बट डिफ़िकल्टीज बार्टर सिस्टम में बहुत सारी हमें आने लग गई, एंड एज अ रीज़न वी ट्राई टू ओवरकम इट. तो हमने उसकी कोशिश करी उसको ओवरकम करने की, एंड बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए मनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. सो मनी इज़ इन सर्कुलेशन, राइट. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इज़ देयर. मनी इज़ इन डिफरेंट फॉर्म्स. अर्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट ओल्डन टाइम, देन currency was in metal, later on paper currency is in existence. So a lot of things has been changed. लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. दैट्स द रीज़न, राइट. अगर हम ओल्डन टाइम्स में देखेंगे तो पेपर और कॉइन करेंसी बहुत रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे उस टाइम, बहुत कम होते थे, राइट. बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मेक पेपर, एंड कॉइन करेंसी आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस वेरी लेट, राइट. And they have very high value, so they cannot use as a currency, right. Later on it served as a money. हम लोग कई बहुत कॉस्टली मेटल्स का इस्तेमाल करेंसी के फॉर्म में करते रहे, जैसे फ्लिंट स्टोन था. देन वी हैव ऑब्सिडियन, देन वी हैव कौरी शेल्स. कौरी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड विच वी यूज एंशिएंट टाइम, राइट. टाइगर के पॉ बिकॉज रेयर मिलते थे, व्हेल का टीथ बहुत रेयर मिलता है, डॉग्स टीथ, स्किन, फर, कैटल, राइस, peppercorns, right, salt. These are some names which has been used as a currency, because this is a very expensive type of metal, things which a person gets. So therefore it has been used as a currency, right. So do you know the word celery comes from? आप बहुत आम यूज़ करते हैं सभी सेक्टर में. This word is very very common, celery. Celery word came from a Latin word called salarium. Maxim word which has been used in geography, that has been picked up from Latin, right. इसका मतलब पेमेंट बाय सॉल्ट. इसका मतलब ये होगा अगर आप सॉल्ट खरीदो तो थ्रू पेमेंट ओनली यू डूइंग इट, राइट. सो देयरफॉर दिस वर्ड हैज़ बीन सैलरी, राइट. सो मैनी दैट टाइम द पर्सन हु आर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को बनाना सी वाटर से लोगों को पता नहीं था, राइट. और इट कैन बी मेड ओनली थ्रू रॉक सॉल्ट. आज भी हम लोग देखते हैं एक पहाड़ी नमक जिसको हम लोग बोलते हैं. तो उस टाइम लोगों को रॉक सॉल्ट के बारे में पता था, राइट. लेकिन ये बहुत रेयर होता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था. दैट्स द रीज़न वाई दिस सैलेरियम वर्ड हैज़ टू बी देयर. तो द पर्सन हु कैन पे इट ओनली कैन परचेज इट, राइट. सो दैट बिकम ए मोड ऑफ करेंसी, राइट, मोड ऑफ पेमेंट. इसका इस्तेमाल हम लोग करने लगे. अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, वो हाउ दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन स्टार्टेड, राइट. इफ़ यू सी इन एंशिएंट टाइम, अगर हम लोग पुराने टाइम में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गुड्स का ट्रेड आज शुरू हुआ है. इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम, राइट. सो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते आ रहे हैं गुड्स को फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, राइट. बट इट वॉज वेरी रिस्की because that time we don't have any technology for that, so it's become very risky for trading. So trade mainly आपका local market तक ही restrict रह गया, क्योंकि अगर ट्रेडर को डर हो कि मेरा सामान पता नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, तो डेफिनेटली ट्रेड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स ओनली. तो पुराने टाइम में ज़्यादातर ट्रेड लोकल मार्केट्स के लिए होता था. देन पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज़. लोग अपना ज़्यादातर पैसा भी अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को फूड्स के लिए खर्च करते थे, और क्लोथ्स का ट्रेड होता था. बिकॉज नाउ लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ बीन इम्प्रूव. सो रिच पीपल जो उस टाइम थे वो लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते थे, कॉस्टली ड्रेसेस को खरीदते थे, राइट. सो लग्जरी आइटम का भी ट्रेड शुरू हो गया बिकॉज दे आर इन डिमांड. सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिल्क रूट. We have a very important and very famous route which has been started in Africa, Asia, that is called Silk Route.
right? So this route has been started for trade mainly, right? So it mainly connect Asia to Rome, right? पूरा रोम से लेके चाइना, इटली का कैपिटल है रोम, रोम से लेके चाइना तक एक हमने रूट बनाया जहाँ से हम लोग ट्रेड करते थे. So this route is around 6,000 kilometer. Mainly silk is traded in this, therefore the name is silk route. ऐसा नहीं है कि सिल्क को ही ट्रेड करते थे, बाकी चीज़ें भी करते थे. जो ट्रेडर्स थे यहाँ पर, they used to transport Chinese silk from this route, right? और रोमन वूल का इससे ट्रेड होता था, प्रीशियस मेटल्स का ट्रेड होता था, और बहुत हाई वैल्यू कमोडिटीज़ का भी ट्रेड इस रूट से होता था, राइट? एंड लॉट ऑफ कंट्रीज कम्स इन दिस रूट. इंडिया भी आता था, पर्शिया, ईरान भी आता था, राइट? सेंट्रल इंडिया भी, सेंट्रल एशिया भी आता था इसमें. लेकिन जैसे ही रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था और उनका एरिया बहुत वास्ट था, लेकिन धीरे धीरे रोमन एम्पायर में डिसइंटीग्रेशन आ गया, वो टूट गया, सारा का सारा रोमन एम्पायर टूट गया और उनकी डेंसिटी ख़त्म हो गई. और यूरोपियन कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ 12th और 13th सेंचुरी में. और बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ऑफ न्यू रूट्स बाय यूरोपियंस, and development of ocean route has been started, new warships has been made, right? And that was the reason why Europeans able to capture so many Asian countries. So Europe का trade एशिया में भी बढ़ा और अमेरिका में भी बढ़ा, क्योंकि these places were discovered by Europeans. 15th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन जिस एरिया पे अपनी कॉलोनी भी बनाने लग गए वो लोग, यूरोपियंस लोग. So they make some countries as their own colony, or they started to trade of exotic commodities. Exotic commodities are those commodities which are very very expensive and rare in nature. So that type of things European people have started, right? So a new form of trade also started, जो हम लोग स्लेव ट्रेड की बात बोलते हैं, गुलामों का ट्रेड करना. So that system was also started in this era. So many European countries came to different parts of the world and they make colony of that area. So Portuguese लोग भी थे, उन्होंने भी इंडिया में भी first Portuguese who came to India, right? His name was Vasco da Gama. Then Dutch also came to so many countries, Spain. Then British also captured India, as you know already. India colony था ब्रिटेन का, and they ruled us for so many years, right? And European people used to have African natives. जो अफ्रीका के जो लोग थे उनको पकड़ लेते थे वो लोग, and forcefully transported them to newly discovered America. अमेरिका में काम करने के लिए इन लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था ताकि लेबर का काम कर सके, उनकी प्लांटेशन क्रॉप्स में, right? So that's the reason why slave trade has been started. So that's the reason why slave trade has been started in this era. So this is not a good thing basically, right? So slave trade was very very profitable type of business for them. और ये 200 साल तक अराउंड स्लेव ट्रेड चलता रहा, राइट? फॉर मोर देन 200 years. और इसको बाद में पीपल फेल्ट दैट इट्स नॉट गुड, सो इट वाज अबॉलिश्ड. फर्स्ट कंट्री टू अबॉलिश दैट वाज डेनमार्क. डेनमार्क ने स्लेव ट्रेड को अबॉलिश किया 1792. And then in Great Britain also same thing happened. They also abolished slave trade in 1807, Great Britain. And then United States also abolished in 1808. So this was the story of that. Slave trade को धीरे धीरे बंद किया गया, right? Because this is inhuman type of practices which is against human rights, right? So this photograph which is there in your book, American slave auction advertisement was there. So 2000 the American dollars were there, जो 2000 रुपये में उन लोगों ने एक स्किल्ड मेंबर्स को खरीदने की कोशिश करी, राइट? बट धीरे धीरे व्हाट एक्जेक्टली हैपन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग गई बहुत सारी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए था. बट इफ़ यू सी ऑल दिस कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दे डोंट हैव, दे कैन नॉट ग्रो रॉ मटेरियल, right? So they demand for raw materials like grains, they demand for meat, they demand for wool, and this type of trade has been expanded. Slave trade से लोगों ने अब raw materials की तरफ trade करना शुरू किया. But
देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन। अगर हम उनको देखें तो धीरे धीरे मैन्युफैक्चर गुड्स की कीमत बढ़ती चली गई और जो रॉ मटेरियल था उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती चली गई। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दैट। सो इंडस्ट्रियल नेशन इम्पोर्टेड प्राइमरी गुड्स। इंडस्ट्रियल देश जो थे उनको प्राइमरी गुड्स की ज़रूरत थी, उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। सो देयरफॉर लेटर ऑन व्हाट दे डू, they take raw material, make the goods there and send these finished products in these countries, colonized countries. तो ये सब चलता रहा and they used to travel to these countries because they get a lot of profit by sending their finished goods. But what basically happened in 19th century, 19th century में region जो primary goods को produce करते थे, they are also very important country because they are selling off some primary goods. These countries play a very important role. So these regions produce primary goods were no more important. अब वो इतने important नहीं रह गए थे, right? और mainly industrial जो nation थे, अब उन्होंने किसी और को अपना customers बनाना शुरू कर दिया. So that's a problem with these countries, especially if you see in World War I and World War II. Countries impose lot of trade tax, right? And they put restrictions for first time. एक country से trade नहीं करना, उससे नहीं करना. So that was the reason, because they have mainly two groups. One is Allies and one are Axis, which participated in this war in both the World War I and World War II. Earlier it was not there when trade sanctions were imposed. लेकिन बाद में trade sanction लगाने लगे, किसी का सामान किसी से trade नहीं करना. So that thing was started, right? So after post-war, when Second World War came to an end, there were so many organizations which came into shape. तो एक जो बहुत बड़ी important organization है जो आज भी exist करती है, that's called General Agreement for Tariff and Trades, right? कौन सी country पे कितना tariff लगना है, कैसे trade होना है, so that is a very important. So this General Agreement for Tariff and Trade organization turned to call as a World Trade Organization. इसने बहुत हेल्प किया, ठीक है. वर्ल्ड में आज भी ट्रेड को कैरी करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है. किस कंट्री का कितना टैरिफ होना चाहिए, दैट ओनली मेनली डील्ड बाय दिस, राइट. सो व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? नाउ दिस इज द टॉपिक. व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, ठीक है? बिकॉज एवरी कंट्री इज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, दे हैव टू डिपेंड ऑन सम वन अनदर कंट्री, राइट. बिकॉज वन कंट्री स्पेशलाइज इन वन थिंग एंड दे प्रोड्यूस दैट थिंग. सो दूसरी कंट्री की ज़रूरत होती है, वो उससे खरीदता है. सो मेनली ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट द वर्ल्ड इकोनॉमी. अगर ये ट्रेड नहीं होगा तो देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. सो इट बेनिफिट्स होल वर्ल्ड. तो आज अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू दिस थिंग ओनली, राइट. सो स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन एवरी कंट्री. अगर हम एक चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं. रीजन ऑफ लेबर बहुत होता है, कौन सा लेबर क्या काम करेगा. सो डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज़ आर आल्सो मेड इन दिस. तो ये सब कुछ होने लगा, राइट. एंड लॉट ऑफ सर्विसेज आर देयर. तो हर जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो भी कंट्री किसी चीज़ में स्पेशलाइज हो जाता है, तो इस कारण वो ट्रेड का राइज होता है. तो दैट्स द रीज़न व्हाई ट्रेड स्टार्टेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. अगर इंडिविजुअल भी अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो इंटरनेशनल ट्रेड भी इसी प्रिंसिपल पे है, कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट. कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को अगर किसी को कुछ चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो दैट टाइप ऑफ थिंग. और फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं गुड्स को, कि नहीं कि एक कंट्री इतनी दूर है जहाँ से हमारी एसेसिबिलिटी और ट्रेड करना आसान नहीं है. तो दैट थिंग आल्सो considered in this. So transferability of goods and services is also very important. So these are the main principles on which our international trade base. So आपको comparative देखना है, complementary देखना है, transferability of goods and services को देखना है. और ट्रेड तब फ़ायदा है इंटरनेशनल ट्रेड का अगर दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअल बेनिफिट होता है. अगर एक ही पार्टी को फ़ायदा हो रहा है तो ट्रेड नहीं होगा. तो डैट इज़ आल्सो प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो इस चीज़ का भी हम लोग दिमाग में रखता है. मॉडर्न टाइम में ट्रेड इज़ मेनली द बेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो आज अगर टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो ट्रेड गिव अ वेरी गुड शेप, राइट. तो
तो ये काफ़ी हद तक फॉरेन पॉलिसी उस देश पे डिपेंड करता है कि उस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। कोई कंट्री किसी के साथ ट्रेड करना चाहता है, कुछ किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इट डिपेंड्स, ट्रेड डिपेंड्स ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। लाइक वी डोंट वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, राइट, बिकॉज आवर फॉरेन पॉलिसी डजंट अलाउ इट। सो अगर हम देखें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, इस कंट्री में भी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली दैट कंट्री विल गेट मोर बेनिफिट और उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेशन करने का। तो जिस कंट्री का भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी ज़्यादा होगा। वी हैव सम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, हमारे कुछ बेसिस हैं। अब ये हमारा एक टॉपिक है, हमारे क्या बेसिस है इंटरनेट ट्रेड के लिए। डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्स, हर कंट्री के अपने रिसोर्स डिफरेंट है। कुछ किसी कंट्री किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, कोई कंट्री किसी में स्ट्रॉन्ग है। तो वर्ल्ड के जो नेशनल रिसोर्स हैं वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी कंट्री में किसी चीज़ की ज़्यादा है, किसी चीज़ में उस चीज़ की कमी है, राइट। एंड दैट वाज द डिफरेंस, दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस मेक्स ट्रेड पॉसिबल, राइट। तो हर कंट्री की जियोलॉजी एक जैसी नहीं होती, वहाँ की सॉइल एक जैसी नहीं होती, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता, राइट। तो हर कंट्री का फिजिकल फीचर्स बहुत डिफरेंट करते हैं। दैट मे बी द रीज़न वाई ट्रेड अकर्स। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजी इज कंसिडरिंग विद रॉक्स, हर कंट्री की रॉक्स डिफरेंट है, राइट। तो वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी डिफरेंट होंगे। किसी रॉक में कुछ मिनरल मिलता है, किसी रॉक में कुछ मिलता है, राइट। सो उसकी टोपोग्राफी डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स भी होती है। हर कंट्री में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, कुछ एनिमल्स डिफरेंट टाइप के रेज किए जाते हैं, राइट, ड्यू टू इट्स जियोलॉजी, राइट। सो डेफिनेटली इफ़ यू सी लो लैंड, जो समतल एरिया है, वहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, राइट। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे एनिमल को रेयर किया जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी देयर ड्यू टू दिस। सो माउंटेन्स मेनली अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, और जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, क्योंकि लैंडस्केप इज़ वेरी गुड, scenery of that area is very good, so it attracts so many tourists and that promote tourism. Then we have mineral resources. Minerals are very unevenly distributed to world. अगर हम देखें किसी कंट्री में मिनरल ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है, राइट, और इट्स वेरी अनइवनली। अगर हम देश की बात भी करें तो अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में मिनरल्स का काफ़ी वेरी करता है। वन स्टेट हैविंग मोर मिनरल, अदर स्टेट डजंट हैव एनी, राइट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आल्सो गिव चांस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जिस कंट्री के पास मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। सो दैट्स वेरी क्लियर। देन क्लाइमेट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एरिया का, कैसा फ्लोरा होगा, कैसा फौना होगा। फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ एंड फौना मीन्स एनिमल लाइफ, राइट। तो कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स रहेंगे, कौन से सर्वाइव करेंगे गिवन रीजन में, दैट इज़ पॉसिबल ऑन क्लाइमेट इटसेल्फ। क्लाइमेट कैसा है, तो इसके कारण ही आपकी डाइवर्सिटी होगी। जैसे आपका क्लाइमेट है उस हिसाब से आपके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे। जैसे कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया इन नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट्स, राइट। सो वूल प्रोडक्ट्स जो आपका प्रोडक्शन होता है मेनली दैट इज कैरिड इन कोल्ड रीजन्स, राइट, लाइक बनाना, रबर एंड कोकोआ, दिस आर द क्रॉप्स ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। So that is the reason climate plays a very important role. Then we have a population factor. आपके एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, साइज़ कैसा है, पैटर्न कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है। सो दैट आल्सो गिव चांस टू दिस, राइट। तो आपका कैसी गुड्स को ट्रेड किया जाएगा। इफ़ यू यंग पीपल आर देयर तो आपको यंग जैसी चीज़ों को ही ट्रेड किया जाएगा। इफ़ ओल्ड पीपल आर देयर देन डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड विल बी देयर। तो आपकी पॉपुलेशन कैसी है, उसमें डाइवर्सिटी कैसी है, वो भी काफ़ी हद तक टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स को ट्रेड करवाएगा, राइट। देन वी हैव कल्चर फैक्टर। सम टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टन कल्चर्स। तो कुछ खास तरीके का आर्ट, कुछ खास तरीके का कल्चर, वो भी आपका ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ चाइना, चाइना प्रोड्यूसेस फाइनेस्ट प्रोक्लेन्स एंड ब्रोकेट्स, ओके। तो ये आपके वो चीज़ें हैं जो चाइना कल्चर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनली इट इज़ प्रोड्यूस ओनली इन चाइना, नॉट इन अदर कंट्री। देन कार्पेट्स ऑफ ईरान,
सारे वर्ल्ड में अगर किसी कारपेट्स की डिमांड होती है तो वो ईरान से की जाती है, राइट. एंड इफ़ यू टेक नॉर्थ अफ्रीका, मेनली लेदर वर्क इज़ वेरी गुड एट. और इंडोनेशिया में स्पेशल टाइप का क्लॉथ होता है जिसको बैटिक क्लॉथ कहते हैं. ये कुछ बहुत महंगे हैंडीक्राफ्ट्स हैं और स्पेशली इन्हीं कंट्रीज़ में ये प्रोड्यूस किया जाता है. सो दैट्स पॉसिबल. दैन साइज ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे मेनली आपका इंटरनल ट्रेड को प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है अपने आप के बीच में ही, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए हो जाता है. तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए उनके पास बहुत कम बच जाता है, ठीक है. और मेनली आपका जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने लोकल मार्केट्स में ही ख़त्म हो जाता है. तो जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ख़त्म कर जाता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत मैटर करती है ट्रेड के लिए. आपके देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, आप कैसे लोग रहते हैं, किस हिसाब से वो डिमांड करते हैं, दैट आल्सो डिटर्मिन द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी. तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है तो उनके जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड कुछ काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट. जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, दे कैन नॉट डिमांड एंड बाई वेरी कॉस्टली थिंग्स. देन वी हैव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एवरी कंट्री पासिस फ्रॉम सम फेज. कोई ना कोई कंट्री अपने ही फेज से निकलता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग सा है, राइट. तो जैसे जैसे उसका फेस होता है, जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, उस हिसाब से दे डिमांड द थिंग्स. इफ़ दे आर प्रिमिटिव, देयर डिमांड विल बी प्रिमिटिव, बट इफ़ दे आर एडवांस, देयर डिमांड विल डेफिनेटली चेंज. एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, राइट. और देयर डिमांड इज़ मेनली एग्रो प्रोडक्ट्स. एग्रो प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स वेयर रॉ मटेरियल इज टेकन फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट. तो एग्रो प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें, जो एग्रीकल्चर कंट्री होते हैं, वो एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं. क्या लेने के लिए? मैन्युफैक्चर गुड्स को लेने के लिए, राइट. जो इंडस्ट्रियल नेशन है, जो देश इंडस्ट्रीज़ में बहुत आगे हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी को. एंड व्हाट दे इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स, क्योंकि उनके देश में फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो किया जाता. सो दैट्स द रीज़न व्हाई दिस ट्रेड इज़ कैरिड आउट इन दिस फैशन. तो ऐसा ही ट्रेड आप लोगों को देखने को. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग अप ट्रेड. FDI कितनी किस देश में आती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज लैक कैपिटल. उनके पास पैसा नहीं होता. दे रिक्वायर्ड technology, they require money for that. So if they want to develop their mining, they want to develop their oil drilling, if they want to develop their heavy engine drilling, they have to depend on FDI. FDI is foreign direct investment. बाहर से कितना पैसा आता है, that also depends to increase their trade, right. So अगर ऐसा पैसा उनको मिल जाएगा तो they can develop so many industries, especially in developing countries. सो इंडस्ट्रियल जो नेशंस होते हैं, दे हैव टू इंश्योर इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टफ, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, दे नीड फूड स्टफ, राइट. दे नीड मिनरल्स, राइट. व्हाई? बिकॉज दे नीड फॉर देयर मार्केट्स, ताकि उनका भी सिस्टम चलता रहे. एंड दे नीड, देन दे विल गिव यू फिनिश गुड्स. सो एंटायर साइकिल इज देयर. सो दिस साइकिल विल स्टेप अप between the shape of trade between two nations. Especially if you see transportation, olden times there was a lack of efficient means of transport and that restricted trade to local areas. So इसीलिए आपका जो trade होता था वो local areas तक ही होता था. लेकिन due to development of transportation, lot of things has been changed. Now things has been changed. Higher value items like gems, silk, spices were traded for a long distance. पहले ये चीज़ों का बहुत ट्रेड होता था. सिल्क का ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड होता था, बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे होता था. सो दैट वाज द रीज़न इन एंशिएंट टाइम द ट्रेड वाज मेनली फॉर दिस थ्री आइटम्स. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशन and air transport, means all mode of transportation, we now have a better means of refrigeration in ships, और हम अपने सामान को प्रिजर्व भी कर सकते हैं शिप्स में. सो ट्रेड हैज़ एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपेंशन जो पहले नहीं था. दैट वाज द रीज़न व्हाई आवर ट्रेड हैज़ एक्सपेंडेड टू मच. सो नाउ वी subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.